Alternating current. Alternating current is an electric current which changes periodically, यानी कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है विथ टाइम. नाउ यानी कि अगर मेरे पास एक पीरियोडिक करंट है तो वो एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उसका वेव फॉर्म कैसा होता है. द मोस्ट कॉमन वेव फॉर्म ऑफ एसी इज अ साइन वेव. ऑल्दो अदर वेव फॉर्म सच एज स्क्वायर वेव एंड ट्राइंगुलर वेव्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. लेकिन बेसिकली हम दो फंक्शन यूज करते हैं, एक तो साइन और दूसरा cosine. Now second is frequency. AC is characterized by its frequency that is measured in hertz, which indicates how many cycles occur per second. That is वो कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है in a second. It is called frequency of the AC wave, which is 50 hertz or 60 hertz, or it can increase or decrease 50 और 60 से भी ज़्यादा या कम. Voltage and current. In AC systems, both voltage and current vary sinusoidally over time. The peak value or maximum voltage of current is often higher than effective RMS. Now, what is RMS value and why do we find it? We'll find in the next slide. ठीक है, which is used for calculation of power. So the effective value of the current is used for calculation of power. But अभी हम देख लेते हैं पहले कि AC जो करंट है वो बनता कैसे, AC EMF यानी कि अल्टरनेटिंग EMF कैसे बनती है. तो इसके लिए हम पढ़ेंगे व्हाट इज AC जनरेटर. सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हमने पढ़ा हुआ कि व्हेन फ्लक्स चेंजेस, है ना, इट इंड्यूसेस एन EMF इनसाइड द कॉइल. सो सेम चीज हो रही है यहाँ पर भी. यहाँ पर एक कॉइल है, दिस इज अ कॉइल एंड दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है कि हमेशा इस प्लेन से क्या होती है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. इस प्लेन से क्या होती है, परपेंडिकुलर. सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, राइट. इट इज अ मशीन which produces alternating current. It is a machine which produces alternating current energy from mechanical energy. It is one of the most important application of the phenomena of electromagnetic induction designed by Nikola Tesla. Principle क्या है, based on the phenomena of electromagnetic induction, that is whenever amount of magnetic flux linked with the coil changes, the EMF is induced. तो जो EMF इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं induced EMF. एंड इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन चेंज होती है जब कॉइल का रोटेशन होता है. So as the coil is rotated in the magnetic field, angle theta between the field and the normal to the coil. So this is the magnetic field and this is the normal to the coil, surface of the coil. This angle is called theta. तो अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कंपैरिजन में EMF इंड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में. Therefore, magnetic flux linked with the coil changes and hence an EMF is induced in the coil. Now let N be the number of turns in coil, A area of the coil, B magnetic field strength and theta is the angle between B and normal to the coil. Normal to the coil. ठीक है, तो नॉर्मल टू द कॉइल का मतलब है कि अगर ये मेरा कॉइल का सरफेस है तो उससे वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है दैट इज नॉर्मल टू द कॉइल. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय N into BA. So B dot A means BA cos theta. So this is cos theta is how much, omega t. Cos theta is omega t, where omega is the angular velocity. Okay, so omega is angular velocity of the coil. So हमें क्या पता चला, that magnetic flux phi is equals to N B A cos omega t. Okay, आगे. As the coil rotates, theta changes, therefore EMF is induced. So induced EMF is equal to minus d phi by dt. So EMF induced इस तरीके से होगा such that वो किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वो चाहता है कि उसके कॉइल, यानी कि जो जैसे कॉइल का सरफेस है, अब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक इंड्यूस EMF इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे. इसीलिए ये जो EMF इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्लक्स. दिस इज चेंज इन फ्लक्स विद टाइम. तो उसको अपोज करने के लिए इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. तो माइनस डी बाई डी टी. नाउ फाई इज NBA cos omega t. Now when we differentiate cos omega t, we'll get sin omega t and t के coefficient क्या है, omega, which is a constant. It will come out of the equation. So the induced EMF E is given by EM sin omega t. EM is what? EM is the maximum value of the induced EMF. EM is what? Maximum value of the induced EMF. Now we want to find the current. Current is EMF by resistance. EMF by resistance. Now EMF is EM sin omega t. EM sin omega t upon R. Now this is alternating current. This is alternating current. So this is how an alternating current is produced. Now in this particular graph, what we can say is, इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक तो पीक वोल्टेज और एक दिख रही है RMS वोल्टेज. तो व्हाट इज RMS वोल्टेज एंड व्हाट इज पीक वोल्टेज, विल फाइंड आउट. नाउ पीक वोल्टेज अगर हमें फाइंड करना हो तो पीक वोल्टेज इज EM, वैल्यू ऑफ EM, एंड दिस RMS वोल्टेज इज दैट वोल्टेज जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी जब उसमें से सेम EMF का करंट प्रोड्यूस होगा, है ना. सेम EMF की वोल्टेज से अगर मैं उसके किसी भी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करूँ, डीसी करंट को, स्टैटिक करंट को, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो यही वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ AC. यानी कि अगर AC का RMS वैल्यू निकालूं और इसका जो DC वैल्यू होगा, इक्विवेलेंट DC वैल्यू, तो इन दोनों की वजह से हीट प्रोड्यूस विल बी सेम. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. द एवरेज वैल्यू कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि AC की फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है,
0 represents the equivalent constant DC current that would transfer the same amount of charge in a circuit during that time। यानी अगर वो 5 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, 10 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ डीसी करंट फ्लो होगा वही उसी वैल्यू के बराबर मेरा एवरेज वैल्यू है एसी करंट का ओवर अ हाफ साइकिल। नाउ एसी करंट इज डिनोटेड बाय I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी। नाउ साइन भी ले सकते हैं और कॉस भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमने साइन ओमेगा टी लिया है, उसी तरीके से हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो हमें कोई ऐसा फंक्शन लेना है जो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा हो, तो साइन भी चेंज होता है और कॉस भी चेंज होता है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि हम कॉस भी ले सकते हैं और साइन भी ले सकते हैं, बट हमने इधर साइन लिया तो हम साइन के हिसाब से देखते हैं। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। Now I is what? I is dq by dt. I is dq by dt. तो dq को मैंने इधर रखा और dt को उधर ले गया, तो I dq is equals to I dt. Now we have to take average over half time, यानी कि हाफ साइकिल का लेना, तो 0 से t by 2 तक का एवरेज लेना है। So 0 to t by 2 I dt. Now I naught comes out. I naught is the maximum amount of current sin omega t dt. Now I naught comes out. Now what is integral of sin omega t? Sin omega t का integral होता है minus cos omega t divided by coefficient of t, that is omega. Now when we substitute the value, we'll get, हम माइनस साइन को अगर बाहर लेके आए तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आई नॉट ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0। नाउ ओमेगा टी इज 2 पाई। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट 2 ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ अगर मैं लिखता हूँ कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 है, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स 2 पाई, तो दिस इज कॉस 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कटेगा, बचेगा पाई, कॉस पाई इज इक्वल्स टू -1 एंड कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 होता ही है, और माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर है। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस we'll get 2i naught upon omega. This is equation number 1. Now also we can define the amount of charge flowing through the half cycle as im, which is the mean value of current, im which is the mean value of current into half time, यानी कि हाफ टाइम में लेट्स से im अगर मेरी मीन वैल्यू है, तो मीन इनटू हाफ टाइम, यानी कि जितने टाइम के लिए हम चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं उससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? मीन वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करने के बाद मुझे मिलेगा दैट im इज इक्वल्स टू 0.637 इनटू आई नॉट, यानी कि जो मीन एवरेज है वो 0.637 टाइम्स आई नॉट है। कहने का मतलब ये कि मीन एवरेज जो है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की वो आई नॉट से कम है, यानी कि आई एम इज लेस देन आई नॉट। और इसको इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इट इज 63.7%, इट इज 63.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट। और सेम चीज मैं लोअर हाफ में भी निकालूंगा तो आंसर मेरा आएगा -0.637, और अगर मैं अपर हाफ और लोअर हाफ के एवरेज को ऐड करूंगा यानी कि प्लस 0.637 माइनस 0.637, तो मेरा एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा ओवर कंप्लीट साइकिल? 0। Now what is root mean square value of alternating current? Now root mean square value of alternating current is that value of current which when flown through a DC circuit, यानी कि वो उस DC steady current की वैल्यू है कि जब हम उतना करंट DC के बराबर अगर किसी रजिस्टर में फ्लो करें तो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistance in a given time and is done by the AC which is flowing for same time, है ना, on the same resistance। तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि जब AC का इन्वेंशन हुआ तो अगर कोई शॉपकीपर है उसको अपना कोई चीज बेचना है तो उसे ये दिखाना पड़ेगा कि ये उतना ही हीट या उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितना वो DC में करता था। इसीलिए हमें RMS वैल्यू की जरूरत पड़ी जिससे मैं कंपेयर कर सकूं DC और AC को। उसके और भी बहुत सारे रीजन है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट आई एम टेलिंग यू। नाउ करंट I is I नॉट sin ओमेगा t। अगेन H क्या होता है? हीट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। नाउ यहाँ पर हम ले रहे हैं छोटे टाइम d के लिए छोटी सी हीट प्रोड्यूसेस dH। नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन I स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t r dt। नाउ sin स्क्वायर ओमेगा t इज 1 माइनस cos ओमेगा t by 2, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला sin स्क्वायर का। Now when we integrate this equation and substitute the value, we'll get H is equals to I square RT upon 2. Now if we want to find the RMS value of current, now this amount of heat produced is equal to the amount of heat produced when this amount of current is flowing through a resistor R in this same interval of time। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट आर इंटू टी। नाउ यहाँ से आर कट जाएगा, यहाँ से आर कट जाएगा, टी कट जाएगा, टी कट जाएगा। नाउ आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। और इसको हम लिख सकते हैं कि रूट 2 की वैल्यू क्या आती है? 1.41, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.707 आएगा। एंड देन आई कैन राइट इट दैट वे आल्सो दैट आई आर एम एस करंट इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एसी सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस। जब मैं एसी को सिर्फ रजिस्टिव सर्किट में कनेक्ट करूँ तो क्या होगा? नाउ दिस इज द ईएमएफ, the alternating EMF E is equals to E naught sin omega t, and this is the voltage which is developed across R. Now this voltage developed across R, that is I into R, is equals to E is given by E naught sin omega t, E naught sin omega t. Now I is equals to E naught by R sin omega t, which gives the value that now this value is called I naught. This value is called I naught, and this is the maximum value of current. Now from equation number 1 and equation number 2 we can see that यहाँ पे भी देखो आर्गुमेंट क्या है? ओमेगा टी। यहाँ पर भी क्या है? आर्गुमेंट ओमेगा टी। तो बोथ करंट यानी कि करंट और EMF आर इन फेज, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, आर इन फेज, यानी कि ई नॉट। अब आई नॉट क्या है? आई नॉट इज ई नॉट बाई आर। तो हमने ई नॉट को किसी नंबर आर से यानी कि जो वैल्यू ऑफ रजिस्टर है उससे डिवाइड किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से कम होगी, एंड दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
Now in this particular simulation, what you can see is this is a resistor, and then this is the voltage across the resistor, and this is the current meter. So what we can see that current and voltage both of them are in phase. Current and voltage both of them are in phase. जब इसका पॉजिटिव आ रहा है यानी कि मैक्सिमम आ रहा है तो इसका भी मैक्सिमम आ रहा है, और इसका नेगेटिव में मैक्सिमम आ रहा है तो उसका भी नेगेटिव में मैक्सिमम आ रहा है. तो voltage and current are in phase. Now what is a phasor diagram? Phasor diagram, as I defined, in order to show phase relationship between voltage and current in an AC circuit, we use the notion of phasors. A phasor is a vector which rotates about the origin with angular speed omega as shown in the figure. So this is the angular velocity and this is the time. यानी कि 2 सेकंड के लिए अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो 2 सेकंड के बाद वोल्टेज में और करंट में कितना फेज डिफरेंस रहा होगा. So this is all about phasors. Now AC voltage applied to inductor. Now inductor में again एक EMF produce होता है. Now what we can see here is this is alternating EMF. E is equals to E naught sin omega t. Induced EMF is minus L di by dt. Now induced EMF हमेशा इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो अपने थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको अपोज करना चाहता है. ठीक है, तो अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स, इसीलिए उसमें EMF इंड्यूस होता है माइनस L di by dt. इसीलिए हमें जो EMF प्रोड्यूस करना पड़ेगा या अप्लाई करना पड़ेगा वो इसके अपोजिट साइन का होना चाहिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी कि हमें उस इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करना है, इसलिए हमने क्या लगाया माइनस साइन. तो माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल. नाउ डी आई को मैंने इधर रखा, डी टी को उधर ले गया. अगेन इंटीग्रेटिंग ऑल द इक्वेशंस, व्हाट आई फाइंड इज दैट आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा. यहाँ पर क्या, यहाँ पे cos ओमेगा टी है ना, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद sin ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया तो माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, राइट. नाउ माइनस को कॉमन लिया तो ई नॉट अपॉन एल ओमेगा cos ओमेगा टी. नाउ cos ओमेगा टी को, यानी कि इस एक्सप्रेशन में मेरे पास cos ओमेगा टी है बट ईएमएफ में मेरे पास sin ओमेगा टी है, तो मुझे cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए आई हैव रिटन cos ओमेगा टी एज sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. नाउ टेकन आउट द माइनस साइन कॉमन आउटसाइड, नाउ दिस बिकम्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. नाउ माइनस ओमेगा, तो दिस माइनस एंड दिस माइनस कन्वर्ट्स टू प्लस and I get sin omega t minus pi by 2. Now I can compare it with this particular equation. तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो what I can find here is that जो मेरा EMF है और जो मेरा करंट है, यानी कि करंट लैग, ये जो करंट है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट इज लैगिंग बिहाइंड. कितने एंगल से लैग बिहाइंड कर रहा है, पाई बाय 2 से. नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करूँ दैट I इज इक्वल्स टू V बाई R. नाउ तो दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज XL, इसको मैंने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ XL इज गिवन बाय ओमेगा इनटू L. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि जो इंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस. नाउ ओमेगा इज 2 पाई इनटू म्यू. म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई. अगर 20 हर्ट्ज है 20, 30 है 30, तो XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L एंड ओमेगा इज 2 पाई म्यू. नाउ इफ यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, नाउ सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिस इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2. नाउ देयर आर टू वेव्स इन दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन एंड बोथ आर इन फेज, बट इफ वन फेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2 इट मींस व्हाट, वो पाई बाय 2 पीछे की साइड है, वो पाई बाय 2 पीछे की साइड है, वो पाई बाय 2 पीछे की साइड है. तो अगेन सी करंट इज लैगिंग बिहाइंड पाई बाय 2 एंड द ईएमएफ इज अहेड ऑफ द करंट बाय पाई बाय 2 एंगल, है ना, बाय पाई बाय 2 रेडियंस. तो अगेन हियर वी कैन सी दैट करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2. Now this is again the simulation. This is see if you can see voltage is ahead of current, voltage is ahead of current, voltage is ahead of current. In this particular simulation, voltage is ahead of current. So this is the EMF applied, this is the current, and current is lagging behind the voltage by 90 degree. Okay, chalo. Now let's move to the next part, that is AC voltage applied to a capacitor. Now again this is the alternating EMF applied to the capacitive circuit. Now C capacity is what, Q by V, बट V इज इक्वल्स टू Q बाई C. अगेन हमें Q I क्या होता है, I हमें देखो इससे मुझे निकालना है करंट, तो मैं ऐसे कौन सी इक्वेशन यूज करूं जिसमें जो कैपेसिटी की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, उसमें करंट भी आ जाए. तो अगेन मुझे पता है ना कि चार्ज, कैपेसिटर और वोल्टेज का ये मेरा फॉर्मूला होता है, यानी कि वोल्टेज और दिस इज E पे लिखते हो, V भी लिखते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं, ठीक है. तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C इक्वल टू E. नाउ I इज इक्वल्स टू dQ बाई dt. सो d बाई dt ऑफ Q, तो Q यहाँ से निकलेगा V इंटू C, और ऐसे अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ तो अगर ये Q है मैं C को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, C इंटू, और E मेरा क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी. इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट C इंटू E नॉट कॉस ओमेगा टी, और T का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा. सो I इज इक्वल्स टू C इंटू E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, E नॉट अपॉन, इसको मैंने कैसे लिखा है, 1 अपॉन C ओमेगा. नाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यानी कि अगर इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड XC, which is called capacitive reactance, which is called capacitive रिएक्टेंस. इसको मैंने 1 अपॉन C ओमेगा में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं रेसिप्रोकल को ऊपर लेके जाऊंगा तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है. 1 अपॉन C ओमेगा है ना, उसको ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी E नॉट C इंटू ओमेगा. नाउ दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. नाउ इफ आई अगेन कंपेयर दिस अल्टरनेटिंग EMF इज इन साइन टर्म्स, इन साइन का फंक्शन है और यहाँ पर मेरा कॉस का फंक्शन है, तो कॉस के फंक्शन को मुझे साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल गेट इज E नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी कैन फाइंड इज द करंट इज अहेड प्लस पाई बाय 2, यानी कि करंट
EMF से आगे है, कितना आगे, π/2 फेज डिफरेंस आगे, यानी कि π/2 रेडियंस आगे है। अगेन x इज 1/2 पाई म्यू सी। नाउ इस इक्वेशन में हम क्या पता कर सकते हैं कि अगर मेरे पास AC ना हो, अगर मेरे पास सिर्फ DC हो, DC कनेक्टेड टू कैपेसिटर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर जीरो होगी तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, XC की वैल्यू होगी 1/2 पाई इंटू म्यू इंटू सी, बट म्यू तो जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो दिस इज इन्फिनिटी। तो DC सर्किट में जो कैपेसिटर होता है हमेशा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सो वो DC को ब्लॉक करता है, DC को ब्लॉक करता है। Next, now this is the wave difference. This is the simulation of how voltage and current are performing, or what is the phase difference between voltage and current in this particular case. Now again यहाँ पर क्या हो रहा है कि current is 90 degree ahead of the voltage, है ना, alternating voltage. Now this is the AC voltage applied to a series LCR circuit. Now मेरे पास तीन component है, first is resistance, second is capacitance and third is inductance. Now resistor में current और voltage same phase में होते हैं, हमने देख लिया। कैपेसिटेंस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, और एल्स दूसरे टर्म्स में बोलें तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। राइट, कहाँ गया, दिस इज ओके, दिस इज कैपेसिटर एंड इन कैपेसिटर करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और वोल्टेज इज बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री, तो सेम थिंग, ठीक है। नाउ इन इंडक्टर वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय 90 डिग्री। अब मुझे इसी चीज़ का यूज़ करके मुझे पूरा डेरिवेशन करना है, जैसे कि लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, दिस इज माय वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, है ना, एंड दिस इज माय करंट। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं देखूं, एज RLC आर इन सीरीज, करंट एट एनी इंस्टेंट विल बी सेम, लेट्स से वो I नॉट है, लेट्स से वो I नॉट है, लेट्स से वो I नॉट है। तो I नॉट जो है वो तो सेम रहेगा इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। तो इसके कंपैरिजन में जो वोल्टेज डेवलप हुई है, अक्रॉस रेजिस्टेंस वो है VR, वोल्टेज जो डेवलप हुई है अक्रॉस इंडक्टर वो है VL, क्योंकि voltage across VL is 90 degree ahead of the current, but voltage across VC is 90 degree behind the current. इसीलिए this is 90 degree ahead and this is 90 degree behind, यानी कि π/2 behind. Now this is this is the EMF at any instant of time, E naught. किसी भी instant of time पर E naught की वैल्यू है E subscript, यानी कि जो alternating EMF है उसकी वैल्यू है E naught, and this is the value of current. Now if I see it carefully, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड दिस इज VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। सो टू डू द एनालिसिस हमें अज्यूम करना पड़ेगा आइदर VL ग्रेटर देन VC और VC ग्रेटर देन VL। दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा, यानी कि जो हम निकालना चाहते हैं आंसर, यानी कि हमें क्या निकालना है, इंपेडेंस निकालना है, उसके लिए दोनों ही असम्पशन काम कर जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अभी एक ही असम्पशन में काम कर रहा हूँ, दैट इज VL ग्रेटर देन VC, VL ग्रेटर देन VC। नाउ दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द फेजर डायग्राम, जहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस L एंड वोल्टेज अक्रॉस C इज शोन कंपेयर टू द करंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे मैंने VL ग्रेटर देन VC अज्यूम करा है, तो व्हाट इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज द रिजल्टेंट EMF, और लेट्स से रिजल्टेंट EMF जो भी होगा एक पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। नाउ इफ आई सी दिस इज वेक्टर OA, दिस इज वेक्टर OA एंड दिस इज OB डैश, दिस इज OB डैश, तो OB डैश और KAK आर इक्वल। तो अगर मैं इसको OK को निकालना चाहूँ, तो OK दिस ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल। Now you can just use the Pythagoras theorem. तो OK is equals to अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस KA स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस KA स्क्वायर, और एल्स हम इसको उस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं जब हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। अगर इसको वेक्टर मान रहे हैं तो यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों वेक्टर का, यानी कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये मेरा रिजल्टेंट होगा, दैट इज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OB स्क्वायर, OB डैश स्क्वायर, OB डैश स्क्वायर क्या होगा, इसमें हमने क्या माना है, VL इज ग्रेटर देन VC, तो दिस फैक्टर, दिस रिजल्टेंट वेक्टर OB डैश विल बी VL माइनस VC, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना है कि VL इज ग्रेटर देन VC, इसीलिए इस वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, VL माइनस VC, वही मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा है इन प्लेस ऑफ OB डैश। नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग all the terms, what we have got is I naught is constant. After solving this, ब्रैकेट में हमें ये मिलेगा E naught is equals to I naught R square plus XL minus XC square. Now this is the EMF, this is the maximum EMF, ठीक है। Now what we have to do is we have to compare it with the Ohm's law. तो E is equals to, again R is equals to, देखो V is equals to IR होता है, तो अगर मुझे R निकालना हो तो R निकालने के लिए क्या करते हैं, V अपॉन I, तो यहाँ पर V नहीं है, यहाँ पर E है, दैट इज अल्टरनेटिंग EMF एट एनी वैल्यू ऑफ EMF एट एनी गिवन टाइम एट एनी फेज डिफरेंस एट एनी फेज फाई, किसी भी टाइम t पर अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू क्या है, E naught. Now if I compare this with the Ohm's law, I will get Z is equals to E naught by R, and this is the value of impedance. This is called impedance. Now the resistance offered by combination of resistor, inductor and capacitor in a series LCR circuit is called impedance of the circuit. Is called impedance of the circuit. यानी कि कितना resistance offer कर रहा है वो, right? Now in this particular diagram, if I draw the phasor diagram again, this is my E naught, this is my, let's say अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, तो this is VR, this is phi, एंड दिस इज, अगर मैं इसको दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे मैं इसको ये बना सकता हूँ कि VL माइनस VC एंड दिस इज
दिस इज ई नॉट, दिस इज ई नॉट। नाउ व्हाट कैन आई डू इज, यहाँ पर मैं वी एल माइनस वी सी की जगह पर, वी एल माइनस वी सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी, एंड ई नॉट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ आर, सॉरी जेड। जैसे यहाँ पे ई नॉट लिखा हुआ था, है ना, वैसे ही वी आर की जगह पर लिख दिया मैंने आर, दैट इज रेजिस्टेंस। वी एल माइनस वी सी की जगह पर लिखा है एक्सएल माइनस एक्सी, एंड ई की जगह पर लिखा है जेड विच इज इम्पिडेंस, तो जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर अगर मैं 10 फाई निकालूं, यहाँ पर अगर मैं 10 फाई निकालूं तो 10 फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 10 फाई व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज एक्सएल minus xc divided by r. Now tan phi is xl minus xc divided by phi. xl minus xc divided by phi. अच्छा, तो if xl minus xc, let's see अगर मैं थोड़ा तुम्हें दिखा सकूँ ये, तो this is what I've done, है ना, this is z is equals to e naught by i naught r square plus xl minus xc square, तो this is the effective impedance that I've got, और इसी को मैंने कन्वर्ट किया ट्राइंगल में, जहाँ पर this is my z, दिस इज माई एक्सएल माइनस एक्सी एंड दिस इज माई आर, तो इसको हम बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल, एंड दिस इज 5, एंड उसी से मुझे मिला tan phi इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। नाउ tan phi इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, tan phi इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो, एक्सएल एक्सी के बराबर हो, तो सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, tan phi क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो tan phi जीरो हो जाएगा, tan phi जीरो हो जाएगा तो सर्किट इज अ नॉन इंडक्टिव सर्किट। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, नॉन इंडक्टिव सर्किट। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है, तो tan phi विल बी पॉजिटिव, phi विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर वोल्टेज लीड्स करंट बाय phi, वोल्टेज लीड्स करंट बाय phi। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ये मेरा वोल्टेज था, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को phi से, तो अगर वोल्टेज लीड करता है करंट को phi से, देन वो ऐसा किस में होता है, वोल्टेज करंट से ज्यादा किस में होता है, वोल्टेज करंट से ज्यादा किस में होता है, इंडक्टेंस में। जैसे इंडक्टेंस में पढ़ा था ना हमने कि एसी कनेक्टेड टू इंडक्टेंस, तो उसमें क्या पढ़ा था, उसमें ये तो पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का, यानी कि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे की साइड है, यानी कि पॉजिटिव है, फेज डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव, यानी कि वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, करंट से ज्यादा है, तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय 5। नाउ अगेन मैं एक्सएल लेस देन एक्सी करूं तो tan phi विल बी नेगेटिव, tan phi नेगेटिव मतलब कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है। तो अगेन यहाँ पे तीन चीजें ध्यान रखनी है, अगर tan phi जीरो है तो वो इंडक्टिव नॉन इंडक्टिव सर्किट है, अगर tan phi क्या है, पॉजिटिव, तो वो कैसा सर्किट होगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड, और अगर tan phi नेगेटिव है तो कैसा सर्किट होगा, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। नाउ दिस इज अ सिमुलेशन हाउ इन आरएलसी circuit what is the waveform and how it is what is the phase difference and what is the current, what is the voltage across C and ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, हमने क्या देखा था यहाँ पे, एक ध्यान से देखना कि दिस इज VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दिस इज VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस L, यानी कि दिस एंड दिस आर always having a phase difference of how much, 180 degrees, are always having a phase difference of 180 degrees। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम में ध्यान दूं, सी इस डायग्राम में, तो वोल्टेज अक्रॉस L and voltage across C are always out of phase by 180 डिग्री, और वही इस वेव एंड दिस, एंड वही इस वेव फंक्शन में भी, इस सिमुलेशन में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखना, VL ग्रीन वाला और VC ब्लू वाला, सी ग्रीन वाला एंड ब्लू वाला आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्रीज। एंड जब हम इन तीनों के फेज को ऐड कर देते हैं तो वही हमें ग्राफ मिलेगा जो हमने अभी पढ़ा, इन तीनों को कंबाइन कर दो, सी दर ऑलवेज हैविंग एट 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि ग्रीन और ब्लू में 180 और रेड और उसमें 90 डिग्री, सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, ना व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ओमेगा है, ठीक है, तो ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वो है 2 पाई इंटू म्यू। अब म्यू फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, राइट, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे उस सर्किट में, यानी कि सीरीज एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। नाउ इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, xl is omega l minus 1 upon omega c, this is angular velocity, right? Now when xl is equals to xc, जब xl और xc इक्वल होते हैं उस पर्टिकुलर केस में ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा r। नाउ व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई म्यू। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ओमेगा, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो ओमेगा r क्या आया, 1 अपॉन LC, 1 अपॉन रूट LC। नाउ ओमेगा r इज 2 पाई इंटू म्यू r, सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, XL इज इक्वल्स टू XC होता है, और उसके कारण जो इंपेडेंस होता है वो मिनिमम होता है, और इंपेडेंस मिनिमम होने के कारण करंट इज मैक्सिमम। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। Now it is important to note that resonance phenomena is exhibited by a circuit only if both L and C are present. Now this is important. Resonance हमेशा उसी सर्किट में होगा जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट होंगे,
ओनली देन डू द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कैंसिल ईच अदर, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज होते हैं बाई 180 डिग्रीज एंड द करंट एम्पलीट्यूड इज वीएम। नाउ ये एनसीईआरटी का है तो यहाँ पे वीएम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है सबको, तो उसमें कोई इशू नहीं, राइट। वी ले लो या ई लो, एक ही बात है। द टोटल सोर्स वोल्टेज appearing across R, this means that we cannot have resonance in RL and RC circuit। तो हम resistance in addition with inductor and resistance in addition with capacitor वाला सर्किट लेंगे तो उसमें resonance नहीं आएगा। Now this is the graph, now this is the graph, see now in this particular graph this particular frequency is called resonant frequency। now at resonant frequency current is how much, see maximum current मिल रहा है, this is maximum current, this is maximum current। ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ब्लू वाला ग्राफ है व्हेन आर इज 100 ओमेगा, एंड ये जो ग्रे वाला ग्राफ है वो किसके लिए, 200 के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज यानी कि वो सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे, जो अमाउंट ऑफ करंट है मैक्सिमम वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही। एल की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो और एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हो, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी ड्रॉप होगा, यानी कि जो मैक्सिमम करंट है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही डिपेंडेंट है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज पावर इन, पावर कितना होगा, पावर कितना जनरेट होगा इसी सर्किट में। नाउ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, दैट इज E इंटू आई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो E क्या होता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अगेन हमने देखा था कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड E बाय सम एंगल 5, सम एंगल 5। किसी किसी बुक में E नॉट ओमेगा टी प्लस 5 भी लिखा रहता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आउट ऑफ फेज है, राइट। नाउ व्हाट इज, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है कि दैट sin A sin B इज इक्वल्स टू cos A माइनस B बाय 2 माइनस cos A माइनस B बाय 2। नाउ cos दिस इज A, दिस इज A, ये जो ओमेगा टी है वो इसको A बोला गया है और इसको B बोला गया है। जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें दो टर्म मिलेंगे, एक तो cos फाई मिलेगा जिसमें टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है, और दूसरा मिलेगा मुझे cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, यहाँ पे एक टाइम फैक्टर है, यहाँ पर एक टाइम फैक्टर है। जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो इस पर्टिकुलर टर्म का एवरेज हो जाएगा जीरो, इस पर्टिकुलर टर्म का एवरेज हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि जीरो से टी तक का अगर मैं टाइम लेता हूँ तो उसमें एवरेज क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है इसलिए एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। और कॉस का जो फंक्शन होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, पीरियोडिकली रिपीट करता है अपने आप को, इसलिए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे पास ये टर्म बचेगा, ये तो मेरे पास कोई टर्म बचेगा ही नहीं क्योंकि इसका एवरेज जीरो है, तो मेरे पास एक टर्म बचेगा E नॉट बाई आई नॉट 2 इंटू कॉस फाइव। नाउ दिस यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, मैंने 2 को अलग अलग कर दिया, रूट 2 और रूट 2 में। तो दिस टर्म इज कॉल्ड RMS value of EMF and this is RMS value of, और you can say this is maximum value, और let's say RMS भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फाइन, इसको RMS वैल्यू बोलते हैं वैसे तो that power, that average power is called E into I into cos phi, E into I into cos phi, E into I into cos phi, and E is equals to what, I square। देखो E क्या होता है, E is how much, जैसे V इक्वल टू आई आर होता है वैसे E क्या होगा, I इंटू आर, लेकिन यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पर क्या है, Z है। E की जगह पर क्या लिखा मैंने, I इंटू Z, तो I दो बार आ गया तो I स्क्वायर Z इंटू कॉस फाइव। अब ये पावर है, राइट, ये पावर है, तो ये तो इक्वेशन होती है मेरी पावर की, होती है ना, और ये भी पावर की इक्वेशन ही है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि पावर की इक्वेशन में एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर भी आ गया कॉस फाइव, तो इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि वो फैक्टर है पावर का, पावर फैक्टर है ना। यानी कि जब पावर को ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें एक मेरे पास फैक्टर आ रहा है जिसको बोलते हैं cos फाइव, एंड cos फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर, cos फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर। नाउ इसके बहुत सारे केसेस हैं। फाइव क्या होता है, नाउ अगर मुझे पता हो फाइव इज इक्वल्स tan फाइव ने पढ़ा था, राइट, तो अगेन फाइव की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। नाउ वो रेजिस्टिव सर्किट कब होगा, इफ द सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर आर इट इज कॉल्ड रेजिस्टिव। इन दैट केस cos फाइव जीरो, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि cos फाइव जीरो और वन कब होता है, जब रेजिस्टेंस होता है तो cos फाइव होता है, यानी जीरो होता है, अदरवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव। प्योरली इंडक्टिव उन्होंने क्या पढ़ा था, प्योरली इंडक्टिव पढ़ा था कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, उस केस में फाइव क्या था, पॉजिटिव, उस केस में फाइव क्या था, पॉजिटिव। इफ द सर्किट कंटेन्स ओनली एन इंडक्टर और कैपेसिटर वी नो दैट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 5/2। तो सिर्फ प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो उसमें एक्सी को क्या मान लिया, जीरो मान लिया, एक्सी को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। वी नो दैट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टिव सर्किट इज 5/2। फेज डिफरेंस कितना है, 5/2, देयरफॉर cos फाइव इज जीरो एंड नो पावर इज डिसिपेटेड even though a current is flowing, power is zero. So this is called waterless current. This is called, now this is important. क्वेश्चन आएगा कि what is waterless current। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में या तो एक्सएल होगा या फिर एक्सी होगा, दोनों ही केस में फेज डिफरेंस इज 5/2, और फेज डिफरेंस 5/2 होने के कारण पावर फैक्टर जीरो होता है, और जब पावर फैक्टर जीरो होता है तो पावर तो जीरो प्रोड्यूस होती है, बट मेरे पास करंट जीरो प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसी करंट को जब, यानी कि जब पावर जीरो होती है और उस वक्त पे जो करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में, उसी को हम बोलते हैं वाटलेस करंट। Now what is case 3, LCR series circuit। In an LCR series circuit, power dissipated is given by equation 7.30 where phi is equals to tan inverse XC minus XL upon R, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, that is tan phi is equals to XL minus XC पढ़ा था हमने। ये क्योंकि एनसीईआरटी में हमने क्या माना था, हमने माना था VL is greater than VC, इसमें मान लिया होगा VC is greater than VL, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, राइट। So phi may be non-zero in RL
or RC or RCL circuit. Even in such cases, power dissipated only in the resistor. Power is dissipated only in resistor. Now what is case 4? Again, if I see case 4, power dissipated at resonance in LCR circuit. At resonance, XC minus XL equal to 0, या फिर XC equal to XL कहने का ये मतलब है XC is equals to XL and phi is equals to 0. Therefore, cos phi is 1. That is maximum power is dissipated in a circuit through R. So at resonance पे again important point है. At resonance, power dissipated is maximum. Power dissipated is maximum. Now these are the, this is यहाँ से एक one marker question बन सकता है इस particular slide से. So please see it carefully. Now the next is transformer. ट्रांसफार्मर का फायदा क्या, मतलब ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है कि हम लो वोल्टेज को किस तरीके से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करें. ना अगर इस सिमुलेशन में तुम देख रहे हो तो मेरे पास दो हैं, एक तो प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है. दिस इज माय प्राइमरी कॉइल, दिस इज माय प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज माय सेकेंडरी कॉइल. तो जैसे ही मैं सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करता हूँ वैसे ही मेरा सेकेंडरी वोल्टेज भी इंक्रीज होता है. ध्यान से देखना, यहाँ पे इंक्रीज किया वैसे ही मेरा वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और अगर मैं प्राइमरी कॉइल को कम कर दूं और सेकंड प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स को ज्यादा कर दूं, सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न को कम कर दूं, तो मुझे मिलेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो हमें दोनों ट्रांसफार्मर काम में आते हैं और लेट्स सी इसका क्या एनालिसिस है और किस तरीके से काम करता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये थ्योरी में आ सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो बेसिकली स्टेप अप से पढ़ेंगे, उस स्टेप अप के थ्योरी से हम स्टेप डाउन का भी पढ़ लेंगे. तो यहाँ पे सी ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं. फर्स्ट होता है प्राइमरी और सेकंड होता है मेरा सेकेंडरी. और ये होता है मेरा सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन को जिसके ऊपर की एक कॉइल लिपटी हुई होती है. तो वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग समझ लेते हैं. व्हेन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, यानी कि एसी को जब हम प्राइमरी कॉइल में कनेक्ट करेंगे, द करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस. तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगी और उसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा. देयरफॉर इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. देयरफॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज डेवलप्ड अक्रॉस द सेकेंडरी, जो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है ना. इसका थियोरेटिकल देख लेते हैं. इसका वर्किंग तो ये था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो सेकेंडरी से लिंक्ड होता है. ठीक है. नाउ लेट अस सी दैट एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कॉइल. ठीक है. एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एनएस number of turns in secondary and phi is the flux linked with both the coils. Now what is the EMF induced in primary? What is the EMF induced in primary? It is negative of NP into delta phi by delta t. एक कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो n नंबर ऑफ कॉइल्स में कितना EMF इंड्यूस होगा, NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. सेम इंड्यूस्ड EMF होगा किसमें, सेकेंडरी में, विच इज गिवन बाय ES is equals to minus NS delta phi by delta t. Now equation number 1, that is this equation, and equation number 2. नाउ इसका अगर मैं रेशियो लूं तो नेगेटिव साइन कट जाएगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कट जाएगा, मेरे पास ये इक्वेशन बचेगी, मेरे पास ये इक्वेशन बचेगी. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज नेग्लिजिबल, द ईएमएफ दैट इज ईपी इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वीपी अक्रॉस इट्स एंड. तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज के बराबर ही होगी. सिमिलरली इफ सेकेंडरी सर्किट इज ओपन, यानी कि उसमें कनेक्शन दे रखा, देन पोटेंशियल डिफरेंस वीएस अक्रॉस इट्स एंड विल बी इक्वल टू ईएमएफ ईएस. यानी कि सेकेंडरी अगर ओपन है, ओपन मतलब कि यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, सेकेंडरी में यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस प्रोड्यूस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीएस के बराबर ही होगा. दैट इज, इस इक्वेशन को देन मैं लिख सकता हूँ वीएस दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वीएस अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्राइमरी इज इक्वल्स टू ईएस माइनस ईपी अपॉन NS माइनस NP इज इक्वल्स टू R. दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. नाउ अब बात करते हैं करंट की. नाउ IP एंड IS आर इंस्टेंटेनियस करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो जब बात हो रही है आइडियल कंडीशन में, जब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है. तो हमने क्या देखा था, तो हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, दैट इज दिस इक्वेशन दैट इज Vs अपॉन Vp इज इक्वल्स टू ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP. इस इक्वेशन से मैंने ये डिराइव किया कि आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, दैट Vs इनटू EP इज इक्वल्स टू ES अपॉन EP. और इसी इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज Vp इनटू IP इज इक्वल्स टू Vs इनटू IS. दैट इज पावर इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी अज्यूमिंग नो पावर लॉस. तो जो प्राइमरी में पावर प्रोड्यूस हुई है वो सेकेंडरी में भी प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, पावर लॉस कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी सी, इफ IP एंड IS आर इंस्टेंटेनियस करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में भी है. तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो IS अपॉन IP VP अपॉन इज इक्वल्स टू VP अपॉन VS इज इक्वल्स टू NP अपॉन NS, क्योंकि VP अपॉन VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP दे रखा ऑलरेडी. ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये तो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, नाउ इस इक्वेशन से मैं कई रिजल्ट निकाल सकता हूँ.
जैसे कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, वेयर दिस आर इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अगर एन एस, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आर, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आर, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आर, जो कि मैंने ऑलरेडी देखा था पहले सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। नाउ इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, ऑब्वियस सी बात है कि आर विल बी ग्रेटर देन 1। इफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन वी हैव स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर एन एस लेस देन एन पी हो जाए तो आर विल बी लेस देन 1, आर विल बी लेस देन 1 एंड वी विल गेट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो दिस इज द होल कहानी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप जितना मैंने कोशिश कर सकता हूँ कम से कम समय में ट्राई टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर, यानी कंप्लीट चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।